Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is impediment and res judicata. Why in news? Recently, in the case of Sultan Saeed Ibrahim versus Prakashan and others, the Supreme Court ruled that once a legal heir is impleaded after due inquiry under Order 22, Rule 4 of CPC, their deletion later under Order 1, Rule 10 is barred, upholding the principle of res judicata. Background of the case: the appellant was impleaded as a legal heir of the deceased defendant after a proper inquiry by the trial court under Order 22, Rule 4 CPC. No objections were raised by the appellant at that stage, nor was a revision application filed against the impediment. Later, the appellant filed an application under Order 1, Rule 10 CPC, claiming he was not a legal heir under Muslim personal law as his father predeceased his grandmother. The trial court and high court rejected the application, seeking deletion of his name. The applicant challenged the decision before the Supreme Court. Court observations: the Supreme Court bench led by Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan observed that the power under Order 1, Rule 10 to add or remove parties cannot override a finalized order passed after due process under Order 22, Rule 4 CPC. It emphasized that once a party has been impeded and no timely objection or revision is made, the matter attains finality. Raising such objections at a later stage violates judicial discipline and the doctrine of res judicata, which may result in delay and unfairness in proceedings. The court dismissed the appeal, stating that allowing repeated objections would keep parties in uncertainty. What were the provisions involved? First, Order 22, Rule 4 CPC, which governs the impleadment of legal heirs in case of death of a party. Order 22, Rule 4 of the CPC outlines the procedure when a party dies during a legal proceeding, specifically concerning the substitution of legal representatives. Second is Order 1, Rule 10 CPC, which allows the addition or deletion of parties at any stage of proceedings. Order 1, Rule 10 of the CPC addresses the addition or deletion of parties in a suit, enabling the court to ensure all necessary parties are present for a fair and complete adjudication of the case. It's the time for practice question. What doctrine prevents the relitigation of a matter already decided? Option A, Audi Ultram Patrum. Option B, Nemo Judex in Causa Sua. Option C, Res Judicata. Option D, Sub Judice. Send us your answers in the comment section below. अभियोग और रीस जुडिकाटा। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुल्तान सईद इब्राहिम बनाम प्रकाशन एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक बार जब किसी कानूनी उत्तराधिकारी को सीपीसी के आदेश 22 नियम 4 के तहत उचित जांच के बाद अभियुक्त बना दिया जाता है, तो बाद में आदेश 1 नियम 10 के तहत उनके नाम को हटाने पर रोक लगा दी जाती है, जो कि रीस जुडिकाटा के सिद्धांत को बरकरार रखता है। अब समझ लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित जांच के बाद अपीलकर्ता को मृतक प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा उस स्तर पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, न ही अभियोग के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया। बाद में अपीलकर्ता ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु उसकी दादी से पहले हो गई थी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनका नाम हटाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। अपीलकर्ता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब समझ लेते हैं न्यायालय की टिप्पणी। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षों को जोड़ने या हटाने की शक्ति आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत उचित प्रक्रिया के बाद पारित अंतिम आदेश को रद्द नहीं कर सकती। इसमें यह जोर दिया गया कि एक बार जब किसी पक्ष को समाविष्ट किया जा चुका है और कोई समय पर आपत्ति या पुनरीक्षण नहीं किया जाता है, तो मामला
अंतिमता प्राप्त कर लेता है। बाद में ऐसी आपत्तियां उठाना न्यायिक अनुशासन और रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिससे कार्यवाही में देरी और अन्याय हो सकता है। न्यायालय ने अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बार बार आपत्तियां स्वीकार करने से पक्षकार अनिश्चितता में रहेंगे। शामिल प्रावधान: आदेश 22 नियम 4 सीपीसी किसी पक्ष की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को अभियोजित करने को नियंत्रित करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 22 नियम 4 कानूनी कार्यवाही के दौरान किसी पक्ष की मृत्यु होने पर प्रक्रिया को रेखांकित करता है, विशेष रूप से कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के संबंध में। सीपीसी का आदेश 1 नियम 10 कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षों को जोड़ने या हटाने की अनुमति देता है। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी का आदेश 1 नियम 10 किसी मुकदमे में पक्षों को जोड़ने और हटाने के बारे में बताता है, जिससे अदालत को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि मामले के निष्पक्ष और पूर्ण निर्णय के लिए सभी आवश्यक पक्ष मौजूद हों। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। कौन सा सिद्धांत पहले से तय मामले पर पुनः मुकदमा चलाने से रोकता है? ए. ऑडी अल्टरम पार्टेम, बी. नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, सी. रेस जुडिकाटा, डी. सब जुडिस। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।